Hello everyone. I hope you all are doing great. Welcome to my free learning platform Kem Shastra. I am Manu and I have got series of video lectures for you which covers the complete syllabus of 11th and 12th standard, and this is definitely going to help you in your board preparation as well as your competitive exams. So all of you please press the bell icon and subscribe to my channel so that all my videos are accessible to you. So today's topic we are going to start as oxidation state. So before going for oxidation state in detail, थोड़ा सा हमें कुछ बेसिक चीजें जाननी पड़ेंगी like electronegativity, because we are going to use this concept in this chapter. Electronegativity क्या होता है? Electronegativity of an element is defined as the tendency to pull the shared pair of electrons in the bonded state. Like if there is a bond between two elements, let us say HCl. अगर HCl के बीच में bond है, तो chlorine is more electronegative, तो this shared pair of electrons will be more shifted towards chlorine. Chlorine इनको ज्यादा अपनी तरफ विड्रॉ कर सकता है, एंड तो उतना ही ज्यादा ये शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स क्लोरीन, और उतनी ही हाइड्रोजन के पास इन इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, क्लोरीन के पास की तरफ ये ज्यादा शिफ्ट हो जाएंगे. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. So in detail electronegativity we are going to discuss in our periodic properties, but here we are just talking about a little bit understanding. We want to know about electronegativity and what is the general trend of electronegativity. Electronegativity, it is the tendency of an element to withdraw the share or to pull the shared pair of electron towards itself in bonded state. Okay, so remember it is in bonded state, that is called electronegativity. और periodic table में इसका trend कैसा होता है? Electronegativity, it increases from left to right. It increases from left to right in a period. This is the general trend we are talking about. We are not talking about exceptions here. The general trend is increases from left to right in a period and it decreases from top to bottom. From top to bottom in a group. Okay, so electronegativity increases from left to right in a period and it decreases from top to bottom in a group, isn't it? Now let us talk about oxidation state. Oxidation state is an arbitrary value, or we can say arbitrary charge, which is assigned to an element. Arbitrary charge matlab hypothetical charge. Actually there is no charge, but it is just a hypothetical charge which is assigned to an element in a compound and is equal to the charge that element would have possessed if all the other elements are removed from it in the form of ions. Okay, so we can write oxidation state, it is an arbitrary value or charge. It is an arbitrary value or charge assigned to an element in a compound and is equal to, it is equal to the charge, it is equal to the charge this element would have possessed if all the other elements are dissociated from it
in the form of ions. Is it clear? So oxidation state is an arbitrary value or arbitrary charge, मतलब hypothetical charge assigned to an element in a compound and is equal to the charge this element would have possessed if all the other elements are dissociated from it in the form of ions. As for example, let us suppose कि carbon dioxide में there is a bond between carbon and oxygen. अब हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अगर इस बॉन्ड को हमने तोड़ दिया तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा, isn't it? तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हर एक बॉन्ड की वजह से उस पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके इलेक्ट्रॉन चले गए तो दैट विल बी असाइंड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू एवरी बॉन्ड. इज इट क्लियर? तो यहाँ देयर आर 2 बॉन्ड्स. इन 2 बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सो इट विल बी असाइंड -2 and carbon will assign +2. क्लियर? तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर 2 डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट है तो उन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है. इज इट क्लियर? अगर वो आपको पता है देन ओनली यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट if the structure is given to you or if you know the structure. So here we can say oxygen is more electronegative, it is taking -2. It is given -2 oxidation state, carbon is given +2 oxidation state. If you are going to break the other bond, इसके वजह से ऑक्सीजन पे -2 एंड कार्बन पे हो गया +2. सो ओवरऑल कार्बन पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया? +4. Isn't it? Each oxygen has got oxidation state of -2 and carbon will have oxidation state of +4. Now let us take another molecule, methane. मीथेन देखिए CH4, इसमें कार्बन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? Every bond we have to compare the electronegativities, right? Carbon is more electronegative, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5. हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1. तो कार्बन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अगर इस बॉन्ड को आप तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स किधर को जाएंगे? कार्बन की तरफ, isn't it? तो इलेक्ट्रॉन गए कार्बन की तरफ. That means carbon will be assigned -1 oxidation state and hydrogen will be assigned +1 oxidation state. I hope it is clear. अगर इस बॉन्ड को आपने तोड़ा तो कार्बन will be -1, ऑक्सीजन होगा +1. हर एक बॉन्ड की वजह से कार्बन -1, ऑक्सीजन +1, कार्बन -1, ऑक्सीजन +1. तो ऑल टुगेदर आपने 4 बॉन्ड्स को तोड़ा और इन चारों बॉन्ड की वजह से कार्बन पे हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट -4. 4 मल्टीप्लाइड बाय -1 तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन क्या हो गया? -4 एंड हाइड्रोजन, ईच हाइड्रोजन हैज गॉट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1. तो देखिए इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज +4 और इस कंपाउंड में इन मीथेन मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज -4. तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे. इज इट क्लियर? इफ देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन 2 सिमिलर एटम्स, अगर 2 सिमिलर एटम्स जैसे कार्बन के बीच में ही बॉन्ड है तो क्या होगा? इसके वजह से देयर इज नो कंट्रीब्यूशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है. Isn't it? So if suppose we have a compound CH3 CHCl, क्लियर? तो अभी देखिए दोनों कार्बन पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? हर एक बॉन्ड को तोड़कर देखेंगे, इस बॉन्ड इस बॉन्ड इस बॉन्ड की वजह से कार्बन पे -1 -1 -1. हाइड्रोजन और कार्बन में कंपेयर करें तो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट? तो तीनों बॉन्ड की वजह से कार्बन पे होगा -3. इस कार्बन पे -3 है. व्हाट अबाउट दिस कार्बन? अब इस कार्बन में देखिए इधर है सेम बॉन्ड बिटवीन 2 सिमिलर एटम्स, सेम एटम्स. तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट उस बॉन्ड की वजह से क्या होगा? 0. नाउ लेट अस टॉक अबाउट दीज 2 बॉन्ड्स, CH बॉन्ड्स. सो CH बॉन्ड्स में कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो बिकॉज ऑफ दीज 2 बॉन्ड्स -1 -1 ऑन ईच कार्बन. अब कार्बन और क्लोरीन में कंपेयर करेंगे तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट?
तो chlorine will be assigned oxidation state -1 and carbon will be assigned +1 due to this bond. तो इसको तोड़ने की वजह से क्लोरीन पे गया -1, कार्बन पे गया +1. So overall on this carbon is -1, -1, +1. That is equals to -1. So see, this carbon has got oxidation state of -3 and this carbon has got oxidation state of -1. So both the carbons are not same. Both the carbons, दोनों कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट सिमिलर नहीं है. तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं average oxidation state of carbon. What is the average oxidation state of carbon? Sum of all the oxidation states of carbon upon total number of carbon atoms. Is it clear? Sum of all the oxidation state, that is -3 on this carbon and -1 on this carbon upon 2. So it is -4 upon 2. That is -2. So -2 is the average oxidation state of carbon. Is it clear? So if you know the structure of a compound, if structure is known to you, very easily you can find out the oxidation state, provided electronegativity difference you are aware of. Okay, अगर आपको पता है कि दोनों कंपाउंड, जो भी कंपाउंड में एलिमेंट्स है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, किसकी कम है, तो ऑब्वियसली यू कैन इजीली डिटरमिन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कंपाउंड और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट इन अ कंपाउंड. Okay, so let us work out some of the problems based upon oxidation state of some compounds, some elements in a compound. Let us say oxidation state of water. एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. वाटर के केस में देखिए, ऑक्सीजन का बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ. अब इस बॉन्ड को आप तोड़ेंगे तो क्या होगा? इस बॉन्ड को अगर आपने तोड़ा तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -1, हाइड्रोजन इज गिवन +1. यहाँ इस बॉन्ड की वजह से -1 एंड +1, राइट? So oxygen altogether will have oxidation state of -2 and each hydrogen is +1. Clear? Let us solve some more examples. क्रोमियम पेरोक्साइड. क्रोमियम पेरोक्साइड, ये कुछ एक ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनका स्ट्रक्चर आपको अगर पता है तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे, राइट? यू शुड नो द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड. अगर आपको नहीं पता है तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू टेल यू दीज स्ट्रक्चर्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिना स्ट्रक्चर जाने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना मुश्किल है. ओके, देयर आर सर्टेन रूल्स आल्सो, वी विल सी इट, बट दीज कंपाउंड्स आर एक्सेप्शनल. ठीक है, एक यहाँ पे एक पते की बात ये है कि जब भी कोई बॉन्ड प्रेजेंट होता है बिटवीन टू सिमिलर एटम्स, तो उसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? उसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता. बेसिकली ये ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या चीज? ये ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट चैप्टर में हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे एंड वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स. जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें ये सारी चीजें बहुत डिटेल में बताई जाएंगी. फिलहाल लेट अस फोकस ऑन दिस ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे हो रहा है. दैट मीन्स इट इज एक्चुअली इंडिकेटिंग कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट से जो दूसरा एटम बॉन्डेड है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या कम. इज इट क्लियर? तो यहाँ दिस क्रोमियम इज बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन एंड देयर आर 6 बॉन्ड्स प्रेजेंट विथ ऑक्सीजन एटम्स. इस पर्टिकुलर कंपाउंड में कितने बॉन्ड्स है क्रोमियम के? 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड है. हर एक बॉन्ड की वजह से क्रोमियम पे आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट +1 क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन पे जाएगा -1. क्लियर है? सो अगर इस बॉन्ड को हमने तोड़ा तो क्रोमियम विल हैव एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2, ऑक्सीजन -2. इस बॉन्ड की वजह से +1 -1, here +1 -1, here +1 -1, +1 -1. तो देखिए, और इस बॉन्ड को अगर आप तोड़ेंगे तो देयर इज नो कंट्रीब्यूशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट
क्योंकि यहाँ पे लिंकेज क्या है बिटवीन टू ऑक्सीजन एटम्स व्हिच इज सेम, इजंट इट? तो यहाँ क्रोमियम पे ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम हियर इन दिस केस is +6. I hope it is clear. So we will see some more compounds जिसमें structure based oxidation state हम निकाल सकते हैं and it is very very important. Carbon suboxide. Let us see one more compound. Carbon suboxide. कार्बन सबऑक्साइड इज C3O2. तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? This is the structure of carbon suboxide. Now, whenever there is a bond between two similar atoms, तो electronegativity अगर same है, तो there is no contribution in oxidation state. देखिए इस सेंटर कार्बन पे दोनों कार्बन से ही लिंक्ड है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कंट्रीब्यूशन क्या होगा? 0 ड्यू टू दीज टू बॉन्ड्स. इस कार्बन पे इसकी वजह से, इस दोनों बॉन्ड की वजह से 0 एंड ड्यू टू दिस बॉन्ड इट इज -2 +2 -2. Due to this bond it is +2 -2. So overall oxidation state देखो, this carbon has got oxidation state of +2 0 +2. Clear? So what is the average oxidation state? Average oxidation state of carbon. Average oxidation state of carbon कितना हो जाएगा? +2 +0 +2 divided by how many carbon atoms? 3. So this is +4/3. Clear? तो oxidation state हमें fractional values में भी मिल सकता है. We can also get oxidation state in terms of fractional value. Fractional value का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को तोड़कर हमने दूसरे एटम को दे दिया, isn't it? जब भी fractional value दिखा, that means it is what? Average oxidation state. वहाँ एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे of the same type, और उसका अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं और एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यू कैन गेट इट इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट्स आर नॉट सेम इन a particular compound. Okay, so now let us see some of the more compounds here. Kerose acid. कैरोज एसिड क्या होता है? कैरोज एसिड H2SO5, इसको कहते हैं पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड. दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड. Peroxy monosulfuric acid. So we have to know the structure. Okay, so what is the oxidation state? अब देखिए यहाँ पेरोक्सी लिंकेज है, there is a linkage between two oxygen atoms, right? तो अब इसकी वजह से अगर इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं. नाउ यहाँ सल्फर कितने बॉन्ड से लिंक्ड है? 1 2 3 4 5 6 atoms with 6 bonds with oxygen. ऑक्सीजन सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हर एक बॉन्ड की वजह से सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होना चाहिए? सल्फर विल हैव एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 ड्यू टू ईच बॉन्ड एंड देयर आर 6 bonds, so oxidation state of sulfur is +6. Is it clear? So H2SO5 sulfur will have +6 oxidation state. देखिए इस ऑक्सीजन पे -2 -2 -2 and this oxygen will have -1 -1. This is -2 -2 -2. This oxygen will have -1 -1 each. Is it clear? Hydrogen will have +1 +1. तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कितना हो गया? +6. Okay, let us see one more compound which is called Marshall's acid. Marshall's acid. Marshall's acid क्या होता है?
Marshall's acid is H2S2O8. This is peroxy disulfuric acid. This is called peroxy disulfuric acid. So oxidation इसका structure क्या होता है? SOOS. So calculate the oxidation state of sulfur here. सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? देखिए कितने बॉन्ड से ऑक्सीजन के साथ 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड से ऑक्सीजन के साथ. So each sulfur will have an oxidation state of +6 because both the sulfur atoms are having 6 bonds with oxygen, isn't it? तो यहाँ average oxidation state of sulfur क्या आ जाएगा? +6 by 2, that is equals to +6. So in Caro's acid also oxidation state is +6. In Marshall's acid also oxidation state is +6. Now tetrathionate ion. Tetrathionate ion is S4O6 2-. Tetrathionate ion. It is S4O6 2-. So this is the structure. Now you can see between sulfur linkage अगर between sulfur atoms है to similar atoms तो इसकी वजह से oxidation state क्या होगा? 0, isn't it? So this sulfur has got 0, this sulfur has got 0. इस सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 1 2 3 4 5. तो इस पे है 5 +5, इस पे भी हो जाएगा +5. तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट और वी कैन से एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज +5 प्लस इस सल्फर पे 0 प्लस इस सल्फर पे 0 प्लस 5 this upon how many sulfur atoms? 4. This is equals to +10 by 4, that is +2.5. So oxidation state of sulfur in this case, in the case of tetrathionate ion is +5. I hope it is clear. समझ में आ रहा है? Okay, now we'll see tribromo octoxide. Let us see oxidation state of bromine in tribromo octoxide. Br ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर. अब देख करके अब बताइए कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा फॉर ब्रोमीन एटम. तो ब्रोमीन का देखिए यहाँ बॉन्ड है बिटवीन टू सिमिलर एटम्स, इसकी वजह से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं. इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं. अगर तीन यहाँ ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड्स है? 1 2 3 4 5 6. तो 6 बॉन्ड्स को अब तोड़ेंगे तो ब्रोमीन विल हैव +6 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीजन विल हैव -2 ईच, isn't it? क्योंकि दो बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ. ऑक्सीजन इज सिंस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो प्लस चार्ज विल बी गिवन टू क्लोरीन एंड माइनस चार्ज विल बी गिवन टू ऑक्सीजन. नाउ फ्रॉम फॉर दिस ब्रोमीन आल्सो इट इज +6. So what is the average oxidation state of bromine? For this bromine we have 4 bonds, so it is +4. So average oxidation state of bromine is कितना हो जाएगा? It is +6 +4 +6 upon total number of bromine atoms, that is 3. So it is +16 by 3. This is the oxidation state of bromine in BR3O8. Is it clear?
Okay, the oxidation state of Pb3O4, Pb3O4, lead tetroxide. This is the structure of Pb3O4. So calculate the oxidation state of lead. लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए. अब इन दोनों बॉन्ड को तोड़ेंगे तो लेड विल हैव दिस लेड, बिकॉज ऑफ दीज टू बॉन्ड्स इस लेड पे आएगा +2. यहाँ 4 बॉन्ड्स हैं ऑक्सीजन की वजह से, तो इस लेड पे आएगा +4, और यहाँ 2 बॉन्ड है तो इट विल हैव +2. तो ये जो सेंटर वाला लेड है, दिस इज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दीज टू लेड्स आर प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो इनका जब आप एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेड क्या आना चाहिए? +2 +4 +2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ लेड एटम्स, दैट इज 3. दिस इज इक्वल्स टू +8/3. सो दिस इज द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेड. आई होप इतनी बात समझ में आ गई. इज इट क्लियर? ओके, तो अब आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि इतने सारे स्ट्रक्चर्स हमें कैसे पता होगा, isn't it? अभी तो आपने, हो सकता है आगे के बहुत सारे चैप्टर्स अभी आपने पढ़े नहीं है, तो ये स्ट्रक्चर्स आपको नहीं पता होगा, बट स्टिल डोंट वरी. यहाँ हमने जितने एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर्स थे मोस्टली वी हैव ट्राइड टू कवर. अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे स्ट्रक्चर्स का आप निकाल सकते हैं बेस्ड अपॉन सर्टेन रूल्स. देयर आर सर्टेन रूल्स assigned for the oxidation state in the case of some of the compounds or most of the compounds we can say, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में फिक्स्ड होता है. तो ये इनका एक रूल हम डिटरमिन और स्पेसिफाई कर सकते हैं, and based upon the rules, even if you don't know the structure of most of the compounds, you can easily determine the oxidation state. Okay, so let us see the rules. Rules for finding out oxidation state. Rules for finding the oxidation state of an element in a compound. तो सबसे पहला रूल वी हैव टू टॉक अबाउट फ्लोरीन. राइट, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होना चाहिए? -1. और यही फ्लोरीन अगर F2 के प्रेजेंट में फॉर्म में प्रेजेंट है, तब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 0. तो कोई भी एलिमेंट अगर अपने प्योर नेचुरल एलिमेंटल स्टेट में रहता है, प्योर नेचुरल एलिमेंटल स्टेट का मतलब क्या है? जैसे हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ H2, isn't it? हाइड्रोजन नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? अपना प्योरेस्ट फॉर्म, दैट इज H2. ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन द नेचर in the form of O2. So if any element is present in its pure natural elemental state, then oxidation state is 0. Oxidation state of any element present in its pure natural elemental state, pure natural elemental state is 0, isn't it? Now let us talk about fluorine. Oxidation state, अब फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4.
तो फ्लोरीन के साथ कोई एक्सेप्शन नहीं। अगर फ्लोरीन किसी कंपाउंड के साथ बॉन्डेड, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्डेड स्टेट में प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली उस बॉन्ड को अगर आपने तोड़ा तो फ्लोरीन इज द ओनली वन हु इज गोइंग टू टेक द इलेक्ट्रॉन्स, इजंट इट? तो यहाँ फ्लोरीन को हमेशा असाइन करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट -1 अगर वो किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है तो। इज इट क्लियर? सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन is always -1 in all its compounds. Okay, this is without exception. F2 का हमने already यहाँ indicate कर दिया है. Oxidation state of any element present in its pure natural elemental state is 0. As for example, O2, H2, F2, राइट, Cl2, इन सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? इन सभी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 0. क्लियर? क्योंकि ये प्रेजेंट है अपने प्योर नेचुरल एलिमेंटल स्टेट में, इजंट इट? कार्बन सॉलिड, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए? 0. वो तो नॉन बॉन्डेड स्टेट में ही प्रेजेंट है. ओके, सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1 इन ऑल इट्स कंपाउंड. इट इज फिक्स्ड. नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इज ऑक्सीजन. सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल नॉर्मल ऑक्साइड्स, जितने भी ऑक्सीजन अपने नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाता है, नॉर्मल ऑक्साइड इज -2. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन in all normal oxide is -2. Okay, in the case of peroxide, in peroxides it is -1. Peroxide as for example peroxide होता है H2O2, राइट? कहीं भी पेरोक्सी लिंकेज मतलब लिंकेज बिटवीन टू ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट हो तो ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन स्टेट क्या देंगे? -1, isn't it? और ये नॉर्मल ऑक्साइड्स एज फॉर एग्जांपल लेट अस से Al2O3 या कोई भी नॉर्मल ऑक्साइड होता है, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या असाइन करेंगे? -2, राइट? इन द केस ऑफ in superoxides as for example KO2, it is -1/2. In superoxides it is -1/2. As for example KO2 में oxidation state of oxygen is -1/2. Okay, next in KO3 में it is -1/3, isn't it? Now ऑक्सीजन अगर फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है तो फ्लोरीन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट? तब ऑक्सीजन को नेगेटिव नहीं दे सकते, तब हमें फ्लोरीन को नेगेटिव देना पड़ेगा. सो इन OF2 it is +2. OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2. This we are talking about oxygen, isn't it? So OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2. In O2F2 में it is +1, isn't it? तो फ्लोरीन के साथ कभी भी लिंकेज होता है तो it is always positive. Now next we can talk about hydrogen. हाइड्रोजन के साथ क्या रूल है? हाइड्रोजन तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, राइट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज 2.1. तो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में एलिमेंट्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, isn't it? तो हाइड्रोजन को हमेशा +1 देते हैं इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड्स. मेटल हाइड्राइड्स आर द एक्सेप्शन. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन all its compounds is +1 except metal hydrides. Except metal hydrides. Metal hydrides
In metal hydrides, it is, क्योंकि metals तो हाइड्रोजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, isn't it? So in metal hydrides it is -1. Metal hydrides it is -1. Next rule is oxidation state of alkali metals. क्या होता है alkali metals? Alkali metals are group 1 elements, right? So oxidation state of alkali metals, that is group 1 element, is always +1. Oxidation state of alkali metals. Alkali metals means group 1 element. Group 1 elements. Is always +1, right? Oxidation state of alkali metals, that is group 1 elements, is always +2. And next rule we can say oxidation state of alkaline earth metals. Which are alkaline earth metals? Group 2 elements. See, group 1 elements, that is hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium, isn't it? Group 1 elements का oxidation state हमेशा क्या होता है? +1. Group 1 elements. Group 2 elements. Group 2 elements, that is beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium, isn't it? So group 2 elements का oxidation state is always +2. Oxidation state of alkaline earth metals. Alkaline earth metals, these are group 2 elements. Group 2 elements is always +2. Okay, oxidation state of alkaline earth metals, that is group 2 elements, is always +2. This is completely fixed. ये आपको याद होना चाहिए, right? So we have talked about here, we have talked about fluorine, we have talked about oxygen, we have talked about hydrogen, we have talked about alkali, that is group 1 elements, group 2 elements. इतने elements का हमने oxidation state fix कर दिया. Now let us see oxidation state of halogens. So rule number 7, oxidation state of halogens. अब halogens भी तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, राइट? हालोजेंस का मतलब क्या हो गया? ग्रुप 17 एलिमेंट. तो वो पीरियोडिक टेबल में बहुत ज्यादा राइट में आते हैं. और हमने क्या कहा कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, राइट? तो राइट में आते हैं तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत हाई होती है. तो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में जिसमें हालोजन प्रेजेंट होता है, हालोजेंस को हमेशा देते हैं -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्सेप्ट, इसमें भी एक्सेप्शन है, except in interhalogen compounds and some of the oxygen containing acids, oxi acids of halogens. Okay, so oxidation state of halogen is in most of its compound is -1. In most of its compounds is -1 except interhalogen compounds. Interhalogen compounds and oxi acids of halogens. Interhalogen compounds and oxi acids of halogens. Interhalogen compounds. Interhalogen compounds क्या होता है?
इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का मतलब क्या हो गया कि जब दो हाइड्रोजन को मिलकर के कंपाउंड बनाया है, एज फॉर एग्जांपल लेट अस से ClF3, राइट? तो ClF3 इस तरह के कंपाउंड्स में क्या होता है, द वन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज असाइंड -1 और दूसरे वाले को पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं. क्लियर? सो इन इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव the more electronegative element is given oxidation state -1 and the less electronegative is given +1. Or less electronegative, we can say not +1, we have to actually determine it. Less electronegative is given positive. Okay, as for example in ClF3 में फ्लोरीन का हो जाएगा -1. अब पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो क्लोरीन का क्या होना चाहिए, वी कैन डिटर्मिन. क्लोरीन अगर X है तो X + 3 - 1 should be equals to 0. So X will be here in this case, X will be equals to +3. ओके, अभी थोड़ी देर में और ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा. अगर नहीं समझ में आया तो एक दो रूल और देख लेते हैं, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा. इन ऑक्सी एसिड्स of halogen as for example HClO4, राइट? इसमें हाइड्रोजन का होगा ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव. The halogen is assigned oxidation state positive. Okay, halogen is assigned positive oxidation state. Is it clear? Now next rule number 8. तो कभी भी अगर दो नॉन मेटल्स के बीच में बॉन्ड हो तो द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल बी गिवन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, द सम ऑफ, अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल शुड बी इक्वल्स टू 0. इज इट क्लियर? द सम ऑफ oxidation state of all the elements in a neutral molecule is 0. Okay, sum of the oxidation state of all the elements in a neutral molecule is 0. Next, rule number 9. लिखिए, the sum of oxidation state of all the elements in an ion is equal to the charge present on the ion. It is equal to the charge present on the ion. Is it clear? It is equal to the charge present on the ion. Okay, so sum of oxidation state of all the elements in a neutral molecule is 0, right? And sum of oxidation state of all the elements in an ion is equal to the charge present on the ion. तो देखिए न्यूट्रल मॉलिक्यूल में क्या होता है, एज फॉर एग्जाम्पल कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल में अगर हम निकालते हैं लेट अस से KMNO4,
KMnO4 में अगर हमें मैंगनीज का सपोज निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैंगनीज का, पोटाशियम, के का तो अभी हमने बताया कि अल्कली मेटल्स है, ग्रुप 1 एलिमेंट है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट शुड बी व्हाट, +1, राइट। मैंगनीज का वी हैव टू फाइंड आउट, तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो कि X है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स्ड है, दैट इज -2 सिंस इट इज अ नॉर्मल ऑक्साइड। सो if you take the sum of all the oxidation state, तो ये क्या होना चाहिए, since it is a neutral molecule it should be 0। तो यहाँ क्या लिखेंगे, +1 plus x minus plus 4 ऑक्सीजन एटम्स है, तो 4 multiplied by -2। देखिए +1 फॉर पोटेशियम, मैंगनीज का हमने x मान लिया है, तो वी हैव टेकन x फॉर मैंगनीज। ऑक्सीजन 4 एटम्स है, तो इट इज 4 multiplied by -2 for each oxygen, and this sum should be equals to 0. So from here we can get the value of x as +7. Is it clear? So that's how you can determine the oxidation state of a particular element in a compound if the rules are given to you. Okay, provided there are no exceptions. ओके, एक्सेप्शंस की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं एंड बहुत सारे एक्सेप्शंस के स्ट्रक्चर भी हम देख चुके हैं, तो वो चीजें आपको बिल्कुल याद रहनी चाहिए फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम टेलिंग। और इनफैक्ट जेई और नीट में एक्सेप्शंस वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो प्लीज गो थ्रू विद द एक्सेप्शंस, राइट द स्ट्रक्चर एंड फाइंड आउट द oxidation state of the element. Okay, let us solve it for one or two more problems. Oxidation state of K2Cr2O7, इसमें क्रोमियम का निकालिए। What is the oxidation state of chromium in potassium dichromate, that is K2Cr2O7? So in let us assume this chromium to be X, पोटाशियम का हमें पता है ग्रुप 1 एलिमेंट है, सो इट इज +1। ऑक्सीजन का हमें पता है, इट इज सिंस इट इज अ नॉर्मल ऑक्साइड, सो इट इज -2। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। सो फॉर पोटाशियम इट इज, देयर आर 2 पोटाशियम एटम्स, सो 2 multiplied by +1। क्रोमियम कितना है, 2 multiplied by x, प्लस ऑक्सीजन कितना है, 7 multiplied by -2। और क्योंकि ये एक न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो इसका सम क्या होना चाहिए, 0। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ रहा है सबको। सो हियर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, +6। क्लियर? तो बेस्ड अपॉन द रूल्स आप बहुत आसानी से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड देयर आर नो bonds present between the similar atoms, isn't it? अगर वो होगा तो फिर rules पे based आप नहीं निकाल सकते। Let us solve it for iodine in IO3 minus, since it is an ion। तो iodine का निकालेंगे। Let us take iodine as x, oxygen as -2। So in this case, let us take it as x plus 3 multiplied by each oxygen has got -2. This is equals to charge present on the ion. क्या कहा हमने, the sum of oxidation state of all the elements in an ion, अगर ये ion है तो it is equal to the charge present on the ion, isn't it? So this is equal to -1। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, +5। क्लियर? तो आयोडीन का यहाँ क्या लिखा हमने, +5। अगर ये कोई आयन है तो आयन के ऊपर कितना चार्ज है, सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयन। क्लियर? एक और आयन का सॉल्व करते हैं। लेट अस सॉल्व इट फॉर अमोनियम आयन। NH4+ में नाइट्रोजन का निकालिए, nitrogen in the case of ammonium ion। So for nitrogen let us take it as x, hydrogen का होता है +1, so this is इसका कितना आएगा, x plus 4 hydrogen atoms are present, 4 multiplied by +1 equals to +1। +1 is the charge present on ammonium ion। So what is the value of x here, x will be equals to +1 और यहाँ +4 है तो -4, दिस इज इक्वल्स टू -3। सो नाइट्रोजन का इन अमोनियम आयन इट इज -3। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई। यस
कुछ एक एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट हम रूल पे बेस निकाल नहीं सकते, राइट? एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको HCN का निकालना है, सपोज वी हैव टू फाइंड आउट फॉर कार्बन इन HCN. अब इस केस में हाइड्रोजन का तो रूल है, हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट इज फिक्स्ड, बट कार्बन एंड नाइट्रोजन दोनों का ही ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं है, isn't it? दोनों के लिए कोई भी रूल स्पेसिफाई नहीं है, तो वी कांट सॉल्व सच प्रॉब्लम्स बेस्ड अपॉन द रूल. उसके लिए हमें क्या करना है? वी हैव टू नो द स्ट्रक्चर. तो हाइड्रो HCN, वी हैव अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन, राइट? तो अगर इस बॉन्ड को आप तोड़ेंगे तो फिर इसका स्ट्रक्चर बेस निकालना पड़ेगा. इस बॉन्ड को आप तोड़ेंगे तो दिस विल हैव +1 एंड कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन विल हैव -1. तो कार्बन विल हैव -1. अगर इस बॉन्ड को हमने तोड़ा तो 3 बॉन्ड्स आर देयर, तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन विल बी -3, कार्बन विल बी +3. सो ओवरऑल oxidation state of carbon is -1 +3, that is +2. So in HCN molecule, oxidation state of carbon is +2. अब यही मॉलिक्यूल को अगर हमने HNC लिख दिया तो in HNC there is a coordinate bond, right? There is a coordinate bond between nitrogen and carbon. अब coordinate bond का क्या रूल है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए भी कुछ रूल्स स्पेसिफाई है, वी हैव टू सी दैट. ओके, लेट अस सी द रूल्स फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड. रूल्स फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड. आई होप आपको क्लियर है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है. कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड इज म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स टू फॉर्म अ बॉन्ड. और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? इट इज वन साइडेड शेयरिंग ऑफ electrons to form a bond. One-sided sharing means if suppose A and B, A has got one pair of electron and B has got a vacant orbital, right? अगर A का octet complete है और उसके पास एक pair of electrons भी present है, तो वो B के खाली orbital के साथ share कर सकता है, overlap कर सकता है, isn't it? And this is called one-sided sharing. तो इसमें हम from the donor atom to acceptor atom, it is indicated with a bond, isn't it? This is called a coordinate bond. तो coordinate bond के लिए oxidation state assign करने में what is the rule given? So in the case of coordinate bond, we can say whenever a coordinate bond is present and it is directed from more electronegative element to less electronegative element. जैसे इस केस में अगर A ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, B कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और बॉन्ड डायरेक्टेड है फ्रॉम मोर टू लेस, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं. इज इट क्लियर? सो व्हेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज डायरेक्टेड, व्हेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड is directed from more electronegative element to less electronegative element. From more electronegative element to less electronegative element, then no contribution in oxidation state due to this coordinate bond. Okay, no contribution in oxidation state due to this coordinate bond. Is it clear? तो इस केस में देखिए क्या है. In this case, in the case of HNC,
As for example, let's see HNC. यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? नाइट्रोजन. दिस इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं इन ऑक्सीडेशन स्टेट. तो इन दोनों बॉन्ड को अगर आपने तोड़ा तो कार्बन विल हैव +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रोजन विल हैव -2. बट ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर आपने तोड़ा तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं. ओके, उसकी वजह से दोनों एलिमेंट पे 0. Now, if you are breaking this bond, hydrogen will have +1, nitrogen will have -1. So, overall oxidation state of nitrogen is -3, carbon will have +2, hydrogen will have +1. I hope it is clear. Coordinate bond का rule समझ में आ गया? Okay, next rule is when coordinate bond is directed, when it is directed from less electronegative element to more electronegative element, तो क्या होगा? तो इन दैट केस जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करेंगे और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको -2 ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करेंगे ड्यू टू दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है, अदर बॉन्ड्स आर डन अकॉर्डिंगली जो हमने पहले डिस्कस किया, बट ड्यू टू दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड कम वाले को +2, ज्यादा वाले को -2. Okay, we'll see one example. When a coordinate bond is present and directed from less electronegative element towards more electronegative element, from less electronegative element towards more electronegative element, then +2 oxidation state is assigned to less electronegative element, and -2 oxidation state is assigned to more electronegative element. Okay, so whenever a coordinate bond is present and it is directed from less electronegative to more electronegative, then +2 oxidation state is assigned to less electronegative element and -2 oxidation state is assigned to more electronegative element. Is it clear? जैसे एग्जाम्पल देखते हैं फ्रॉम नाइट्रो. देखिए नाइट्रो कंपाउंड्स में, नाइट्रो में क्या होता है? there are two bonds, covalent bond between nitrogen and oxygen, and there is one coordinate bond between nitrogen and oxygen. अब बताओ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन. तो यहाँ पे ये डायरेक्टेड है फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो इन दिस केस अगर आप इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तोड़ेंगे तो नाइट्रोजन विल बी गिवन व्हाट? It will be given +2 oxidation state or oxygen will be given -2 oxidation state. अगर कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ेंगे तो this because of these two bonds nitrogen will be having +2 oxidation state, oxygen will be having -2 oxidation state. तो ओवरऑल नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? नाइट्रोजन पे ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +2. This is for nitrogen. So this is equals to +4. तो इन नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रो में नाइट्रोजन हैज गॉट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4. ये ऑक्सीजन है -2, ये है -2. आई होप इट इज क्लियर. दिस इज द रूल फॉर
कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स. ओके, द रूल्स फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स ध्यान में रखो. कम से ज्यादा की तरफ है तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कंट्रीब्यूशन होता है. कम वाले को +2, ज्यादा वाले को -2. लेकिन अगर ज्यादा से कम की तरफ डायरेक्टेड है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ डायरेक्टेड है, तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता ड्यू टू दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ओके, सो आई होप इट इज क्लियर. ऑक्सीडेशन स्टेट हमने जितना डिस्कस किया, आई होप की बात समझ में आई होगी. प्लीज गो थ्रू विद दिस वेरी वेरी प्रॉपरली, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम इसे हम इस रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे. ओके, वी विल सी व्हाट इज द ऑक्सीडेशन, व्हाट आर रेडॉक्स रिएक्शन, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, एंड वी विल लर्न टू बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन. Okay, so next video lecture is coming very soon, within a day or two. So all of you keep watching, keep solving problems. Till then, take care. Bye bye.